ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال في حديث آخر فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال في موضع آخر يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ شکر و امتنان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم تمام لوگوں کو ایک بامقصد اور اللہ رب العالمین کی طرف سے جو مبارک ساعتیں ہم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے اس کے اندر بیٹھنے کا ہمیں توفیق دیا. میرے محترم، میں آپ لوگوں کا زیادہ وقت نہیں لے کر کے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سنیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کے اندر جو نکاح ہے یہ روئے زمین کا سب سے پہلا رشتہ ہے. ماں باپ سے بھی پہلے اس زمین کے اندر جو رشتہ قائم ہوا وہ شادی، یہ نکاح کا رشتہ ہے، رشتہ ازواج ہے. اور اس کی اہمیت کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو تو اللہ رب العالمین کی اس قول کی طرف آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی کلام کے اندر کہا وَمِنْ آیَاتِهِ، کہ اللہ رب العالمین کی یہ نشانیوں میں سے ہے کہ اس پاک پروردگار نے تمہاری ہی میں سے، تمہارے نفس میں سے ایک جوڑے کو بنایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے سکونت حاصل کرو. اور اس کے آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے مودت اور محبت کا ذریعہ ہے. اس آیت کے اوپر آپ اگر غور کریں گے تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ زمین کے اندر آنے کے بعد آدم علیہ السلام اور مائی ہوا کے آنے کے بعد جو سب سے پہلا رشتہ قائم ہوا یہی وہ رشتہ ہے جو دنیا کے اندر سب سے پہلے وجود میں آیا. نہ کہیں دادا کا رشتہ تھا، نہ نانا کا رشتہ تھا، نہ دیگر اور رشتہ داریاں تھیں. سب سے پہلی رشتہ داریاں ہیں جو یہاں پہ آئی. میرے محترم، جب کبھی بھی ہم یہ رشتے کو انجام دینے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ جو جلن ہوتی ہے، جو ہمارا دشمن ہے، وہ شیطان کو. کیونکہ جب کبھی بھی ہم ایک نیک کام کو انجام دینے جاتے ہیں تو شیطان اس سے حد سے زیادہ جلن ہوتا ہے، اس کو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک جائز کام کو کرنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں اور آپس میں جمع ہوتے ہیں. اور دین اسلام نے جیسے انسان کی زندگی کے لیے جو بھی چیز ضرورت مند ہے، جیسے ہوا کی ضرورت ہے، آپ کو پیسہ نہیں لگتا ہے ہوا کو خریدنے کے لیے. پانی کی ضرورت ہے، انسانی ضرورت ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے پیسہ نہیں لگایا ہے. اسی طرح سے دیگر جو انسانی ضروریات ہے ان تمام چیزوں کے اوپر آپ غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ نے ہم کو یوں ہی فری میں دے دیا ہے. اسی طرح سے جس طرح انسان کو کھانے پینے کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اسی طرح سے انسان کی یہ دوسری بھوک ہے جسے اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت کے اندر پیوست کر دیا ہے. اور یہ ضرورت ایسی ضرورت ہے
जिसको पूरा करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बहुत पैसे की मतलब ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे तो ये रिश्तेदारी आपकी होगी, या बहुत ज़्यादा आप माल दौलत को जमा करेंगे तो जाकर के आप शादी कर सकते हैं। बल्कि अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने जो तरीका बताया है इतना सहल है, इतना सहल है कि एक मिसाल के तौर पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में एक सहाबी आती है। अल्लाह के नबी बैठे होते हैं, वो सहाबिया कहती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने आप को हिबा करती हूँ, यानी आप मुझसे शादी कर लीजिए। वो औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकरीबन 3 बार कहती है। वहीं पे एक सहाबी बैठे होते हैं, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं कि उस सहाबिया के सवाल के जवाब में आप कुछ दोहरा नहीं रहे, कुछ बोल नहीं रहे। वो सहाबी कहते हैं अल्लाह के नबी अगर आपको जरूरत ना हो तो मुझे इससे निकाह करा दीजिए। वहीं पे सहाबी बैठे हुए हैं और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त करते हैं अल्लाह के नबी आप अगर शादी नहीं करना चाहते हैं तो ये जो औरत अपने आप को आप पे पेश कर रही है, मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी इससे करा दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त जो कहते हैं और हम लोग जो हैं, हम लोग क्या कहते हैं, उसके घर को देखने जाते, उसके धन दौलत को देखने जाते, उसके बैंक बैलेंस को देखने जाते, उसके अंसाब को देखते, उसके हिसाबात को देखते, उसकी कमाई को देखते, उसकी कद काठी को देखते, उसकी सूरतों को देखते, उसकी सीरतों को देखते, ना जाने कितनी चीजें खगाल डालते। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना ही कहा अगर तुम शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे पास देने के लिए क्या है। तो सहाबी के बारे में आप जानेंगे उनके पास में कुछ भी नहीं था। अल्लाह के नबी उनको घर भेजते, देखिए आप अपने घर में जाके देखिए अगर कुछ मिलता है तो वहाँ से लेके आइए ताकि मैं उसको महल के ताल्लुक से उसको रख दूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में वो आते कहते हैं अल्लाह के नबी मेरे घर में वो भी नहीं है। अल्लाह के नबी कहते हैं अच्छा ठीक है तुम्हारे पास में अगर कुछ भी नहीं है तो क्या कोई सूरत तुमको याद है, कुरान की कोई आयत याद है। वो सहाबी कहते हैं हाँ अल्लाह के नबी ये फला सूरह मुझे याद है। अल्लाह के नबी कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारा निकाह करा देता हूँ, ये सूरह तुम अपनी औरत को सिखा देना। ये हदीस बयान करने का मतलब ये है कि यहाँ बहुत पैसा नहीं लग रहा है, यहाँ खर्च करने के लिए बहुत सारी जायदाद की जरूरत नहीं पड़ रही है, बहुत सारे लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही है। अल्लाह के नबी हैं और वो सहाबी हैं, वो अपनी गर्ज को अल्लाह के सामने अल्लाह के नबी के सामने रखते हैं और अल्लाह के नबी उसकी शादी उस औरत से करा देते हैं। इतनी सिंपल और आसान इस्लाम की जिंदगी में ये शादी है। तो मैं अपने नौजवान दोस्तों से कहना चाहता हूँ और मैं उन सरपरस्तों से कहना चाहता हूँ जो लोग अपने बेटे की उम्र को हद से ज्यादा बढ़ाते जा रहे हैं, उनकी उम्र 25 को पार हो गया है, 30 के करीब हो गए, वो इस आसरे में बैठे हुए हैं कि मेरा बेटा 2 कदमों पे खड़ा होगा, वो अपने लिए घर बनाएगा, मुझे कमा करके देगा और वो बहुत सारा बिजनेस करना शुरू कर देगा, उसके बाद जाकर के हम उसकी शादी करेंगे। मेरे मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे जरूर पूछेगा, क्योंकि वो जो भी गलती करेंगे उसके आप गुनहगार होंगे, क्योंकि जिम्मेदार आप हैं और जिम्मेदारी की ताल्लुक से आपसे बात पुरस होगी। अल्लाह के नबी ने कहा कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयती, तुम में से हर शख्स अपनी रइयत जो अपने मातहत हैं उसके बारे में सवाल किया जाएगा। तो आपकी बेटी या बेटे आपकी सरपरस्ती में है, उसकी उम्र हो गई है, आप पैसे के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए और बहुत ज्यादा चीजों को जमा करने के लिए उसका इंतजार न करें। कुरान की एक आयत में है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है वो अनकिहुल अयामा मिनकुम, तुम में जो लोग शादीशुदा हैं तुम उनकी शादी कराओ। उसके आगे अल्लाह ने कहा कि अगर ऐसा तुम करते हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें खुद मालदार कर देगा। मेरे मोहतरम बस एक ही पैगाम है कि हम में से हर शख्स अपने मातहत को बड़े सिंपल अंदाज में, सीधे साधे अंदाज में आप जब भी मौका हो शादी कर दीजिए। अल्लाह के नबी के एक बहुत ही प्यारे सहाबी हैं अब्दुर्रहमान बिन औफ, शादी करते हैं और शादी करने के बाद अल्लाह के नबी को भी नहीं दावत देते हैं, अल्लाह के नबी भी नहीं शामिल होते हैं। सुबह में जब मिलते हैं उनके ऊपर रंग और कुछ खुशबू होती है, उसके जरिए से आप पूछते हैं अब्दुर्रहमान तूने कब शादी कर लिया, वो कहते हैं मैंने कल कर लिया। अल्लाह के नबी कहते हैं तुम वलीमा कर लो, बस
यानी अल्लाह के नबी नाराज नहीं होते हैं कि तुमने शादी किया, मुझे बुलाया नहीं, मैं तुम्हारा नबी हूँ, मैं तुम्हारा इमाम हूँ, मैं तुम्हारा सरदार हूँ, ये सारी बातें कुछ नहीं कहते हैं। तो मेरे भाई, हम में से जो भी रिश्तेदार हैं, अगर कोई ऐसा शादी करता है, सही तरीके से करता है, और आपको ना भी दावत दिया जाता हो, तो आप उसके लिए नाराज ना हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? लड़के का होना, लड़की का होना, वली का होना, निकाह यानी महर का फिक्स होना, तो गवाह का होना। उसके अलावा किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, इतने सारे लोगों की ज़रूरत नहीं है। ये हम लोग आते हैं, ये हमारे बड़कपन है कि हम जमा हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सही समझ अता फरमाए और अच्छी बातों पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क्या हुआ? शांति, आगू जाओ।